Dear students, welcome to Ayush Academy. Before telling something, I have a notification for you. आयुष अकेडमी बड़े ही सफलतापूर्वक कॉम्पिटिटिव क्लासेस संचालित कर रही है और हमारे कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो रन कर रहे हैं उसमें आपकी पीसीएस, रेलवे, एसएससी, वनडे की सारी क्लासेस ऑपरेट की जा रही हैं, संचालित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन ऑफलाइन टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की क्लासेस भी रन कर रही हैं। और आपके लिए एक और सूचना है कि हमारे यहाँ 9th 10th यूपी और सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस भी रन कर रही हैं और आप सभी से आग्रह है कि जो विद्यार्थी इच्छुक हों वो प्रवेश ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस अपने नियमित समय पर संचालित हो रही हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही अच्छा प्ले पढ़ने जा रहे हैं। दिस प्ले इज रिटन बाय, created by, composed by Antony and Cleopatra. Antony and Cleopatra is a very famous play of William Shakespeare. William Shakespeare is one of the great dramatists of his time. Now, before attending this play, I am going to tell you some facts about Julius Caesar. In TGT and PGT examination, some questions can be asked from this play as well as Julius Caesar. The first question arises here: what types of play Julius Caesar is? Dear students, Julius Caesar is a Roman play. ये नहीं भूलिएगा कि जूलियस सीजर एक रोमन प्ले है, यह अन्य प्लेस की कैटेगरी में नहीं आता। दिस प्ले इज रिलेटेड टू जूलियस सीजर, रिलेटेड टू दिस प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। ढेर सारे कैरेक्टर आपकी स्क्रीन पर यहां पर परिलक्षित हो रहे हैं, appear हो रहे हैं, दिखाई दे। Here is one character known as Octavius Caesar. Octavius Caesar is the adopted son of Julius Caesar, and Julius Caesar is the bravest general of Roman army. You know that California is the wife of Julius Caesar and she was childless. That is why Julius Caesar had to adopt adopted son. एक पुत्र को उसे गोद लेना पड़ा था। तो मीन्स द प्ले जूलियस सीजर हैपेंड बिफोर दिस प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा. On the other hand, we can say that Julius Caesar is the first part and this play Antony and Cleopatra is the second. Because Antony and Julius Caesar and his adopted son Octavius Caesar, they are concerning to the play Julius Caesar. Recently I have taught the play Julius Caesar. Those students, they are desirous to attend Julius Caesar, they can attend on this channel Ayush Academy. Due to some technical fault, the end of the play of the Julius Caesar remain incomplete. I am sorry for that. जो स्टूडेंट उसे अटेंड करते हैं, लास्ट पार्ट इनकम्प्लीट रह गया है, लेकिन वो अपने एंड की ओर पहुंच चुका था. Suddenly some technical fault happened, so that I have to skip the video. Now
Listen this play, Antony and Cleopatra. Antony and Cleopatra. After that, you can find and Cleopatra and Caesar. आपको Cleopatra and Caesar भी मिलेगा. I will try the best to teach all the plays of Julius, all the play of William Shakespeare, one by one. This is not a small task. This is a great task because I have to teach here on this channel Aish Academy, intermediate classes, ninth classes. I have to teach many more lessons. So, I cannot provide all the plays of Shakespeare as well as some others recently. You have to wait. Now listen. The first and important character is Antony. But you can see first character is a soldier. I wrote soldier here because the story, the play begins with a soldier. But Antony is protagonist, main character, important character. All the activities of this play moves around Antony. Antony is powerful person, not a single one who is so brave as Antony here in this play. Now next character is Cleopatra. If Antony is the hero of this play, यदि एंटोनी इस प्ले का हीरो है तो हियर क्लियोपेट्रा इज द हीरोइन. Cleopatra is the heroine of this play. You have attended many videos, most of the clips of many teachers, but some facts remain unmoved here. कुछ फैक्ट्स विचलित हो ही जाते, छूट ही जाते, जिन पर हम टीचर्स फोकस नहीं कर पाते. तो एंटोनी was also related Cleopatra, but I am going to tell you some facts concerning to Cleopatra. Cleopatra was very, very beautiful queen. She was the empress of Egypt. वह मिस की इम्प्रेस थी, मिस की क्वीन थी, और शी हैड मैचलेस ब्यूटी. क्लियोपेट्रा को जो सौंदर्य था वो मैचलेस था. ऐसा सौंदर्य शायद ही किसी का रहा. A question is very important here. Those students they are attending TTPST in English, they attended this line. The 7 ages cannot steal the beauty of Cleopatra. This line is very, very important. 7 ages cannot steal the beauty of Cleopatra. क्लियोपेट्रा इतनी सुंदर थी कि 7 युग मिल करके भी क्लियोपेट्रा के सौंदर्य को फेड नहीं कर सकते थे, धूमिल नहीं कर सकते थे. उसका सौंदर्य, her beauty was beyond the proper limit. You can see here Antony, he was in love with Cleopatra. But before Antony, there are 3 men Romans. They had also fell in love with Cleopatra one by one. Cleopatra enjoyed before Antony 3 Romans. Antony was not the first one who was in love with Cleopatra. Antony पहला शख्स नहीं था जिसने क्लियोपेट्रा से प्रेम किया और उसके प्रेम के वशीभूत रहा. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्लियोपेट्रा का जो सौंदर्य था वह अप्रतिम था, बियॉन्ड इमेजिनेशन था. ऐसी सौंदर्य की युवती शायद ही विश्व में कहीं रही होगी. तो यह क्वेश्चन आपके पास बार बार आएगा और इसलिए इस चैनल के माध्यम से आयुष एकेडमी आपको सजेस्ट करती है कि आप इसे देखें, इसे सुने, इसे समझें. दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू डियर फ्रेंड्स. Now I am going to tell you the next character, Octavius Caesar. He is the adopted son of Julius Caesar. Now the next character is
Sextus Pompey. Who is he? Sextus Pompey is the son of Pompey. Who is Pompey? Pompey the Great. He is known as Pompey the Great. Who is Pompey the Great? This Pompey the Great is in the period of Julius Caesar. ये Pompey the Great जो था वो जूलियस सीजर के समय में था, मीन्स ऑक्टेवियस सीजर के पिता के समय था ये. When Julius Caesar attacked on Pompey, at that time between Roman and Pompey there was a great rivalry. दोनों के बीच बहुत बड़ी प्रतिद्वंदिता थी और इसी प्रतिद्वंदिता के कारण जूलियस सीजर ने पोम्पी पर आक्रमण किया और पोम्पी पर आक्रमण करने के बाद उसने पोम्पी को हराया. तो दिस वाज ओल्ड इनमिटी. ये पुरानी शत्रुता थी जो चली आ रही थी. सैक्टस पोम्पी जो था, he was the son of Pompey the Great. He wanted to attack on Rome and defeat Romans. वह समय की अवसर की तलाश में रहता था कि वह उन्हें हराए, लेकिन संधि हो गई थी. टीटी हैपेंड. टीटी दैट संधि, संधि हो गई थी, एग्रीमेंट हो गया था, इसलिए युद्ध कुछ समय के लिए विरामावस्था की ओर था. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज लेपिडस. Lepidus is the man of Octavius and Antony. Menas, next character Menas, he is the man of Pompey, and Agrippa is the man of Octavius Caesar, and Octavia is the sister of Octavius Caesar. And one more and the last character is Fulvia. जो अंतिम कैरेक्टर होगा डियर फ्रेंड्स वह होगा फुल्विया का, Fulvia. Who is Fulvia? Fulvia is the wife of Antony. Fulvia जो है एंटोनी की पत्नी है. She is the first wife of Antony. Antony is already married and his wife was Fulvia. She lived in Rome. वह रोम में रहती थी. And one thing more which is very important here. This play, the setting of this play happened in Rome and Egypt. And the setting of this play, it was happened in 16th century, and this play was published in 1623. यह प्ले 1623 में पब्लिश हुआ. This point is also important. Where is this, the setting of this play happened? The answer will be Rome and Egypt, क्योंकि रोम और इजिप्ट दोनों में इस प्ले की सेटिंग रखी गई है और यह प्ले 16th सेंचुरी में लिखा गया एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1623. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी और द प्लॉट ऑफ दिस प्ले. अ सोल्जर वाज डिस्कसिंग अबाउट एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा. एंटोनी और क्लियोपेट्रा के बारे में एक सोल्जर डिस्कस कर रहा है. व्हाई इज दिस? Because Antony left his wife Fulvia in Rome and he inhabited or settled in Egypt in हिंदी मिस्र. वह रोम से मिस्र चला गया था क्योंकि क्लियोपेट्रा के सौंदर्य से बड़ा आकर्षित हो गया था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया था. एंड ही वॉज एंजॉइंग द कंपनी ऑफ क्लियोपेट्रा. वह क्लियोपेट्रा की कंपनी को एंजॉय कर रहा होता है और he didn't take care about the Rome and his territory. वह रोम की टेरिटरी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए. At that time, there were three men, they were powerful. First is Octavius Caesar, and the second is Antony, and the third is who? Lepidus. ये पावरफुल पर्सन्स में से एक थे. सैक्टस पॉम्पी वाज ट्राइंग द बेस्ट टू फाइंड द चांस टू अटैक ऑन रोम. वह रोम पर अटैक करने का अवसर ही हमेशा तलाशता रहता है. इसी बीच हियर अ मैसेंजर केम एंड दिस मैसेंजर आल्सो रिमाइंडेड द ड्यूटी ऑफ एंटोनी दैट एंटोनी इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी वेल, so that his territory
is going away one by one from his hands. टेरिटरी मीन्स होता है संघ शासित, यूनियन टेरिटरी आपने सुना होगा, संघ शासित क्षेत्र, बट हियर इज टेरिटरी, टेरिटरी दैट इज क्षेत्र। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो एंटोनी के अपने कमांड में थे, ये बाय एंड बाय इट वाज गोइंग अवे ड्यू टू हिज केयरलेसनेस इन स्पाइट ऑफ रूलिंग ओवर दिस टेरिटरी। अपने राज्य पर शासन करने के बजाय, प्रजा के सुख दुख में भाग लेने के बजाय एंटोनी इजिप्ट में था एंड ही वाज एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ क्लियोपेट्रा ब्यूटीफुल प्रिंसेस। दिस वाज द फॉल्ट ऑफ एंटोनी एंड दिस मैसेंजर हैड कम फ्रॉम रोम एंड ही वाज टेलिंग समथिंग टू एंटोनी। नाउ Sextus Pompey, who was the son of Pompey the Great, he was trying the best to defeat Rome and Romans. Now I am telling that Lepidus is the man of Octavius Caesar and Antony. He was always in the favor of them. And Menas is the man of Pompey. और मेनास जो था वह पोम्पी की साइड था. And Agrippa is the man of Octavius only. And here is one character who is missing. This character is Enobarbus. Enobarbus was the personal and faithful man of Antony. Enobarbus एक ऐसा करेक्टर है जिसको मैंने मेंशन नहीं किया है, वह एंटोनी की तरफ है, वह एंटोनी का एक विश्वास पात्र है, खासम खास है. होता क्या है? Here you can see the second messenger. After the first messenger, the second messenger reached Egypt and he informed Antony that his wife Fulvia died. Fulvia died because she was not receiving the love and proper affection of Antony. So she got upset and suddenly she died with untimely death. After hearing the news of Fulvia's death, Antony had to return Rome. फुल्विया की मृत्यु, अपनी पत्नी की मृत्यु जैसे एंटोनी सुनता है, वह इजिप्ट से रोम आ जाता है. जब वह इजिप्ट से रोम आ जाता है, at that time, and Cleopatra was all alone there in Egypt. She had no one to give the company. That is why she was living in the company of हिजड़ा. वह एक हिजड़े के साथ अपना समय बिता रही है. And she was very upset because Antony was not there. वह बहुत अपसेट होती है क्योंकि एंटोनी वहाँ नहीं होता है. वह दुखी होती है. Somehow she was enjoying or spending his time with हिजड़ा और इनच, जिसे अंग्रेजी में इनच या किन्नर कहते हैं. After that, after some long absence, Antony sent a pearl. एंटोनी ने उसे एक मोती भेजा. आप जानते ही हैं कि ऑर्नामेंट्स आर लवेबल फॉर द वीमेन. जो गहने होते हैं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय होते हैं. तो जैसे ही क्लियोपेट्रा ने यह बात देखी, सुनी, पाई कि उसके लिए मोती भेजा गया है, देन शी डिसाइडेड टू राइट ईच लेटर एवरी डे. उससे हर दिन वह उसे पत्र लिखती रहेगी. किसके लिए? वह अपने एंटोनी के लिए पत्र लिखेगी, जिससे उसका प्रेम जीवित रहे, उसका प्रेम परवान चढ़ा रहे, उसके प्रेम में कोई कमी न आए. आफ्टर द डेथ ऑफ फुल्विया की मृत्यु के बाद, हियर इज अ मैन नोन एज अग्रिप्पा यह एक आदमी है. इस अग्रिप्पा ने he had suggested Octavius Caesar and Lepidus that Antony's wife Fulvia died. It will be better for us and Octavius Caesar that he should marry Octavia with Antony. तो अग्रिप्पा ने सलाह दिया कि इस समय एंटोनी एक विधुर है और विडोवर है. अगर उसका विवाह ऑक्टेवियस सीजर अपनी बहन ऑक्टेविया से कर दे तो एक रिश्ता बन जाएगा. दोनों की पावर मिल करके अच्छी हो जाएगी. तब वे अपने दुश्मन सेक्टस पॉम्पी का सामना करने में सफल होंगे. तो ये बात उसकी लोगों को अच्छी लगी. और जब वो बात अच्छी लगी लोगों को, तो ऑक्टेवियस सीजर जो था ये प्रपोजल लेकर एंटोनी के पास पहुंचा. एंटोनी की पत्नी चूंकि मर चुकी थी,
So Antony accepted this proposal and got married with Octavia, the sister of Octavius Caesar and the son of Julius Caesar. इसके बाद ऑक्टेविया का विवाह एंटोनी से हो गया. ऑक्टेविया वाज द सेकंड वाइफ ऑफ एंटोनी. ऑक्टेविया एंटोनी की दूसरी पत्नी होती है. आफ्टर मैरिज एंटोनी एंड ऑक्टेविया वेंट टू एथेंस. विवाह के बाद ये दोनों कहाँ चले जाते हैं? एथेंस चले जाते हैं. एथेंस क्या है भाई? एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस. GREEC. एथेंस जो है ग्रीस की कैपिटल है, यूनान की कैपिटल है. वह वहां चला जाता है. बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग. एज सुन एज दिस न्यूज वेंट टू क्लियोपेट्रा दैट एंटोनी हैज ऑलरेडी मैरिड. यह समाचार जब क्लियोपेट्रा के पास पहुंचता है कि एंटोनी ने तो विवाह कर लिया. नाउ शी वाज अपसेट बिकॉज क्लियोपेट्रा वाज अ कीप यू नो डियर स्टूडेंट, कीप दैट इज रखाल. क्लियोपेट्रा उसकी रखाल थी. क्लियोपेट्रा को ये लगा कि अब तो मेरा पत्ता साफ, अब मैं क्या करूंगी. बट व्हेन शी केम टू नो दिस दैट ऑक्टेविया वाज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर. जब उसे पता चला कि ऑक्टेविया उससे सुंदर नहीं है तो उसकी जान में जान आई. तब उसे लगा कि वन डे एंटोनी विल रिटर्न टू मी. एक दिन एंटोनी मेरे पास आएगा, उसे आना ही होगा. एंटोनी मेरे पास आएगा, उसे आना ही होगा. और इसके बाद उसका थोड़ी सी आस और बढ़ी. आशा उसके पास आई, होप बढ़ गया कि एंटोनी आएगा ही आएगा. इसके बाद क्या होता है? जैसे ही ऑक्टेविया और एंटोनी का विवाह हो जाता है, ऑक्टेवियस सीजर और एंटोनी में कुछ कम जमने लगी. जब दोनों में कम जमने लगी तो दोनों में कुछ न कुछ मतभेद बढ़ता गया और ऑक्टेविया बहुत नाराज हो गई क्योंकि उसके भाई को एंटोनी कुछ न कुछ कहता रहता था. लेकिन फिर भी अपने पति की इज्जत बचाने के लिए, अपने सम्मान के लिए ऑक्टेविया आती है और अपने भाई से माफ़ी मांगती है, उसे समझाती है. लेकिन ये बात यहीं नहीं बनती और इसी बीच ये पता चलता है कि एंटोनी उसे छोड़कर, ऑक्टेविया को छोड़कर पुनः रोम से इजिप्ट चला गया. और इजिप्ट जब वो जाता है तो पुनः क्लियोपेट्रा के साथ रहने लगता है. He had also forgotten his wife Octavia, like फुलबिया, जिसकी जो आदत होती वो करता है. ऑक्टेविया को भी वो भूल गया, पहली पत्नी फुलबिया की ही तरह, और वह फिर क्लियोपेट्रा के आगोश में आ गया और वही इंजॉयमेंट चलता रहा. इसी बीच ऑक्टेवियस कहता है लेपिडस से कि चलो भाई चलते हैं, हम लोग मिस्र चलते हैं, इजिप्ट चलते हैं और हम एंटोनी को सबक सिखाएंगे. अपनी पूरी आर्मी के साथ ऑक्टेवियस मिस्र जाता है, यानी इजिप्ट जाता है. इजिप्ट जाने के बाद ही हैड गिवन द चैलेंज टू डॉग फाइट इन द सी. उसने एंटोनी को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे दी. द्वंद्व युद्ध की ही नहीं बल्कि समुद्र में चुनौती दे दी लड़ने की. इन द बिगिनिंग एंटोनी डिड नॉट लाइक टू फाइट इन द सी, बट एज ए ब्रेवेस्ट किंग और सोल्जर उसने उस चुनौती को स्वीकार कर ली. ही एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ एंटोनी. उसने एंटोनी के चैलेंज को स्वीकार कर लिया. व्हेन द फाइट स्टार्टेड, जैसे युद्ध शुरू होता है, देन Cleopatra, she was the lover of Antony. She said that I will also come to you in the battlefield. मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध में चलूंगा. As a result, she had also come. उसके आ जाने से it was the great fault of Antony. It was the great mistake of Cleopatra that she had also come in the battlefield for fighting. She should not do so. उसे ऐसा नहीं करना था. क्लियोपेट्रा को युद्ध में आना ही नहीं था. She was the reason of the great downfall of Antony. यह एंटोनी के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, उसके पतन का सबसे बड़ा कारण था. But good luck that Antony won the battle first day, and after that he returned and he was enjoying. After enjoying the night, second day the battle also started. दूसरे दिन युद्ध होता है और युद्ध के दौरान when the war broke out between them, then Cleopatra returned from there without informing Antony.
गुस्से से क्लियोपेट्रा एंटोनी को बिना इन्फॉर्म किए वापस चली जाती है और यह देख करके एंटोनी भी उसके पीछे भाग जाता है। वह उससे जाके क्वेरल करता है, दोनों के बीच झगड़ा होता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है तो एंटोनी और क्लियोपेट्रा का संवाद आपस में कुछ समय के लिए रुक जाता है और इसी का फायदा वहां उठाया जाता है। क्लियोपेट्रा नाराज होकर के एक टॉम्ब में चली जाती है और वह कुछ दिन के लिए रुक जाती है। वहां से उसने एक मैसेज भेजा कि जाओ एंटोनी से कहो क्लियोपेट्रा मर गई। इसी बीच क्लियोपेट्रा उधर चली जाती है और एंटोनी का युद्ध दोबारा शुरू होता है, लेकिन युद्ध से वह चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि इनोबार्बस नाम का जो व्यक्ति था वह ऑक्टेवियस सीजर से जाकर मिल गया। जब कोई अपना वफादार दुश्मन से जाके मिलता है तो समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है। तो इनोबार्बस जो एंटोनी का आदमी था वह ऑक्टेवियस सीजर के पक्ष में आ जाता है, इसलिए एंटोनी की हार होनी सुनिश्चित हो जाती है। दूसरे ये न्यूज कि क्लियोपेट्रा डाइड, क्लियोपेट्रा मर गई, इतना सुनते ही बेचारा एंटोनी अपना धैर्य खो देता है। He had lost his patience and he did not like to live, और वह भी जीना नहीं चाहता है। That is why Antony committed suicide for Cleopatra. क्लियोपेट्रा के गम में कि मेरी क्लियोपेट्रा अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। सुसाइड करने के बाद जब ये बात एक सोल्जर आता है और एंटोनी से कहता है कि महाराज, तब एंटोनी मरा नहीं था, उसने कहा महाराज आप तो खामखा झूठे मर रहे हैं, ये तो आपको उकसाने के लिए, आपको उत्तेजित करने के लिए क्लियोपेट्रा ने यह समाचार आपको भेजा है। क्लियोपेट्रा इज अलाइव, क्लियोपेट्रा भी जीवित है, बट इट्स टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, अब कुछ होने वाला नहीं होता है। बात बिगड़ चुकी है, सीमा से परे बिगड़ चुकी है। इसी बीच ऑक्टेवियस सीजर वहां पहुंचता है और उस स्थल पर वह एंटोनी और क्लियोपेट्रा दोनों को पाता है। क्लियोपेट्रा वहां थी और उस समय ऑक्टेवियस सीजर ने क्लियोपेट्रा से कहा कि डोंट कमिट सुसाइड लाइक एंटोनी, एंटोनी की तरह तुम भी सुसाइड मत करना। उस समय क्लियोपेट्रा बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी, क्योंकि वो मरने वाली थी। मरते समय उसने सुंदर वस्त्र धारण किया था। शी वॉज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और क्लियोपेट्रा से जब उसने कहा कि क्लियोपेट्रा तुम्हारी सजा है कि तुम इजिप्ट से रोम चलो और वहाँ एक कैदी की भांति तुम जो है वहाँ पर परेड करना, लोग तुम्हें देखेंगे। वही एंटोनी जो अपना एक एक राज्य क्लियोपेट्रा को दान में देता जा रहा था, प्रेम के वशीभूत होकर देता जा रहा था, और इतने बड़े साम्राज्य की वह साम्राज्ञी थी। क्लियोपेट्रा को यह बात कतई पसंद नहीं आई कि वह रोम के सैनिकों के बीच बंदी होकर के परेड करेगी, लोग उसे देखेंगे, उस पर हंसेंगे। तो क्लियोपेट्रा ने डिसाइड किया इस अपमान से अच्छा है कि मैं भी मृत्यु को गले लगा दूं। देन क्लियोपेट्रा ऑर्डर्ड one of the female maid, one of the maid is also indicating towards female. She ordered her maid to bring poisonous snakes. उसने अपने दासियों से कहा कि विषैले जहरीले सर्प लाए जाए। तो कास्केड में विषैले सर्प लाए जाते हैं। After that, Cleopatra made to bite the snake on her breast. क्लियोपेट्रा ने अपने हाथों पर, ब्रेस्ट पर सर्प से बाइट कराती है एंड पॉइजनस स्टार्टेड इंसर्टिंग इन हर बॉडी। एज ए रिजल्ट क्लियोपेट्रा वाज आल्सो डेड। और क्लियोपेट्रा भी मर गई बिकॉज शी डिड नॉट लाइक टू लिव अ सिंगल मोर मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एंटोनी हर लवर। जस्ट बिसाइड हिम शी वाज आल्सो डेड। वह भी उसी के समक्ष मर गई। व्हेन ऑक्टेवियस सीजर रीच्ड देयर इन विनिंग पोजीशन, जीतने के बाद अब उसकी जीत सुनिश्चित थी। जब ऑक्टेवियस सीजर वहां पहुंचता है, जब उसने देखा कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग द सरेंडर क्लियोपेट्रा एडॉप्टेड द डेथ, क्लियोपेट्रा ने मौत का आलिंगन कर लिया। देन ही रिमार्क्स, ही कमेंटेड हाउ ब्रेव सी इज, यह कितनी बहादुर है। अंत में उसने बहादुरी की मौत को गले लगाया, अपमान को उसने नहीं सहा।
इसी के साथ आपका प्ले एंटोनियो क्लियोपेट्रा कम्स टू एट एंड। इसी के साथ आपका यह प्ले समाप्त होता है। और मैं एक बात और कहूँगा आपसे कि हमारी जो वनडे और पीसीएस की मेनली जो क्लासेस चल रही हैं, इस समय आपका हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, करंट अफेयर्स सारी व्यवस्था के साथ आयुष एकेडमी कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी संचालित कर रही है। Those students they are desirous to attend the offline classes, they can attend. They are most welcome to Ayush Academy. Okay, that's all. Bye bye.